ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਆ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਯੈਸ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਆ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਬੜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 30 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਵੂਮਨ ਆ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਉਹ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝਿਆ ਚੈਟ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਰਾਹ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਸਟਨੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਮਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਡਾਊਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੀ ਆ ਯੈਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫਰਾਹ ਅਹਿਮਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਆ ਜਾਓ। हेलो हाँ जी फराह किदा जी ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दीदी ने बताया मेरा नाम फराह है और जी मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ और पिछले हम्म 8 साल से इटली में रह रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैं जी एक माँ हूँ माशाल्लाह से 4 बच्चों की हम्म और बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं हेल्थ वर्कर हूँ, असिस्टेंट और लेकिन इस टाइम मैं एक स्टे एट होम मॉम हूँ। हम्म और मुझे लगता है हम लेडीज़ जो है ना, अपने हम्म घर के कामों में और बच्चों को सँभालते-सँभालते खुद को बहुत ज़्यादा भूल जाती हैं, बहुत पीछे कर जाती हैं। हम्म और मुझे भी बहुत बार फीलिंग आती थी कि वक़्त तो वो है जो गुज़र रहा है, लेकिन मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है और हम्म समझ नहीं आती थी कि क्या? बस उसी एक तलाश में खुद को पहचाना है और खुद पे ट्रस्ट किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक डिजिटल बिज़नेस ओनर भी हूँ और हम्म आपके साथ भी हूँ। ਪਰ ਯੈਸ ਮੈਂ ਫਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ हाँ ਡਾਊਟ जी, ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ बिल्कुल। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ जी, ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। बिल्कुल, इसको मैं ऐसे स्टार्ट करूँगी जब मैं इटली में आई तो आपको पता है यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर तो बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले ज्यादा लैंग्वेज का किया, फिर मैंने हम्म कोर्स किया यहाँ पे और एक विल थी कि मुझे कुछ करना है, बस ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा थी और मैंने 2 साल जॉब भी की, लेकिन उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी। फिर ये था कि वो 3-4 साल की होगी तो फिर आगे से स्टार्ट लेंगे, लेकिन फिर बाकी बच्चों की भी केयर थी और मैं उनको डे केयर में छोड़ के खुद जॉब पे चली जाऊँ, तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं थी। इसीलिए बस लेकिन वही दिमाग में एक ही थी कि नहीं मुझे कुछ करना है और जब मैंने 1.5 साल तक आपको भी 1.5 साल पहले आपको फ़ॉलो किया और यही था दिमाग में कि नहीं, ऑनलाइन सब फ्रॉड होते हैं, मैं नहीं कर सकूँगी, मैं नहीं करती हम्म इसको। तो बहुत डर था इस बात का, लेकिन जब फिर 1.5 साल बाद मैंने आपकी पोस्ट देखी, रिसर्च किया, तो फिर मैंने कहा ये भी इतने टाइम पहले भी मैंने इनको देखा था, ये अब भी कर रही हैं, अपने बच्चों हम्म के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो ट्राई करना चाहिए। जब मैंने आपके साथ कनेक्ट किया और आपसे बात करके सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा ट्रस्ट बहुत बिल्ड हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो खुद को इस चीज़ पे मुझे अपने इस डर को ख़त्म करना था कि मैं नहीं कर सकती।
हुँ, क्योंकि मैं वो बंदी थी जो बहुत ज़्यादा डरती थी, हर चीज़ से पीछे-पीछे। और हुँ, जब फिर पहले तो खुद के डर खत्म किए कि नहीं मुझे करना है, मैं ट्राई करूँगी इसको। फिर हुँ, ऑब्वियसली हस्बैंड का भी था कि उनको भी कन्विंस करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कोऑपरेटिव है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उनको भी बहुत डाउट्स थे। फिर हमारी आपसे बात हुई, जब बात हुई तो उनके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए थे। और बस इसी इसी इन डाउट्स को क्लियर करके तो फिर हम इंशाल्लाह आगे हमने नेक्स्ट स्टेप लिया था आपके साथ स्टार्ट करने का। और जहाँ तक रहेगी ये दुनिया की बातें, और दुनिया की हुँ, बातें आप करो, कोई भी काम करो, दुनिया तब भी हुँ, बातें करती है। आप ना करो तो लोग फिर भी बातें करते हैं। तो बेहतर है लोगों की परवाह छोड़ के खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। हुँ, खुद को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और हर औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं, ऑब्वियसली हम हस्बैंड पे डिपेंडेंट होते हैं। ये नहीं कि वो हमारा करते नहीं, बहुत करते हैं। लेकिन बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको देख के हम साइलेंट हो जाते हैं। हमें हुँ, ज़रूरत होती है उनकी, लेकिन हम उनको देखते नहीं कि हम कहाँ से करें। वो भी घर हुँ, का सिस्टम सारा चला रहे होते हैं। अब बार-बार उनसे भी कहना अच्छा नहीं लगता। तो बस यही वजह थी कि मैंने इसमें एंट्री की, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है। हर इंसान में सही है। विल होती है, बस उसको ट्राई करना चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ हाँ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਫਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਯੈਸ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਡਰ ਸੀ ਪਰ ਡ੍ਰੀਮ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਯੈਸ ਫਰਾ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ बिल्कुल, ਵੱਡੇ ने यस ऐसे ही। जब तो आपके मैं पीछे जी जी वही मैं कहने लगी हूँ कि जब आप में करने की विल हो ना, कि मैंने कुछ हम्म करना है, तो वो हम्म ज़रूर तलाश करता है कि कुछ ऐसा मिले जो मैं कर सकूँ। वरना हम हम्म लोग घर में अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं, घर को सँभालते हैं। अल्लाह ने इंसान को बहुत बड़ी एबिलिटी हर इंसान को दी हुई है। बस हम हम्म औरतों का क्या है ना कि वो हम उस घरदारी में रहती हैं, अपने आप को पहचानना छोड़ देती हैं। अगर सेल्फ हम डाउट एक खाने को चला हम्म सकती हैं, ठीक है? हम्म एक अपने ससुराल को मैनेज कर सकती हैं, मायके को मैनेज करती हैं, तो हम और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बस हमें अपने आप को ना पहचानने की ज़रूरत है। हम्म और जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो मैं बिल्कुल भी सोशल पर्सन नहीं थी। मुझे मुझे भी यही डर थे कि मैं बात नहीं कर सकती थी। मैं हाँ क्या मैंने पता करूँगी? है आपको भी मैंने बोला हम्म था कि मैंने तो कभी मैं कैमरा शाय बहुत पर्सन थी, मैंने कभी सामने नहीं आई, मैं क्या करूँगी? तो हम्म आपने तो यही मुझे कॉन्फिडेंस दिया था कि आहिस्ता-आहिस्ता आप ठीक हो जाओगे। हम्म कोई भी इंसान सीखा-सिखाया इस दुनिया में नहीं आता, उसको टाइम लगता है सीखते हुए। और हम्म जब देखा जाए मैं अपनी रियलिटी आपको बताऊँ कि मैं जस्ट स्क्रॉलिंग पर्सन था, और हम्म मैंने जब मोबाइल की सेटिंग करवानी होती थी तो मैं अपनी सिस्टर को देती थी कि ये आप मुझे कर दो। और जब मैंने हम्म ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो उससे पहले मुझे पता है जब फर्स्ट टाइम मैंने लैपटॉप को ओपन किया ना, तो उसका पासवर्ड लगाने के लिए ना मैंने अल्फ़ाबेट को कैपिटल करना था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको कैसे करना है। ऑब्वियसली हमने कभी ये हम्म काम किए ही नहीं होते। तो हम्म अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपना बिज़नेस रन कर रही हूँ, सारे काम खुद ही कर रही हूँ। हम ये नहीं हम्म कहते, ना ही हस्बैंड को कहते हैं, ना ही किसी और को कहते हैं, आप हमें ये कर दो, ये यहाँ से बता दो, वहाँ से बता दो। इस बिज़नेस हम्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप जो सारी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। आप जैसे हम्म कोच होते हैं, मेंटर होते हैं, जो हमें इतना हम्म अच्छा गाइड करते हैं। जैसे बच्चा चलना स्टार्ट करता है ना, तो कदम-कदम वो गिरता है, उठता है, गिरता है, सँभलता है, लेकिन वो कोशिश हम्म करता है। इसी तरह इस बिज़नेस में भी हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत आगे हैं। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਫਰਾ ਕੌਣ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਰਾ ਇੱਕ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਸ ਉਹੀ ਰਸੋਈ हाँ, ਤੋਂ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਯੈਸ ਮੈਨੂੰ इसमें ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਹਾਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਪੂੰਛ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ सारा कुछ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ इंशाल्लाह। ਆਪ सारा हाँ होए हो। सो मेरे फरहान पीछे अब इसका जी, इतना पावरफुल ट्री खड़ा है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? जी, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने पहले भी जॉब किया, और जब एक दफ़ा मुझे लगता है कोई लेडी जॉब कर लेती है ना, तो वो हम्म। खुद के पैसों को जैसे इन्वेस्ट करने का मज़ा आता है ना, वो हम्म। कोई भी जैसे हम पेरेंट्स के पास होते हैं तो हम उनसे ले रहे होते हैं, हम्म। हस्बैंड के पास होते हैं तो उन्हें उन पे डिपेंड होते हैं। तो बड़ी सारी आपको बताया कि बच्चों के होते हुए बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम साइलेंट हो जाते हैं। सबसे बड़ी ये चीज़ आती है, और यही वजह थी कि मुझे बार-बार एक ही थिंकिंग आती थी कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मैं क्या करूँ? फिर ये भी वेट नहीं कर सकती थी कि बच्चे बड़े हो जाएँ, क्योंकि बच्चे हम्म। बड़े हो जाते हैं तो इंसान के पास वो हिम्मत नहीं रहती, फिर वो उसकी विल पावर नहीं रहती कि वो अपने आप को आगे लेकर जा सके। और हम्म। सबसे बड़ी मेन रीज़न मेरी जो थी वो यही थी कि मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है। हम्म। ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਫਰਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ जी। ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਜੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਇੰਨੀ ਡਿਸ਼ਸ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ जी। ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ सारा कुछ? हाँ, रमज़ान में तो स्पेशली स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, क्योंकि हम्म। रमज़ान में सुबह 4 बजे तकरीबन उठना होता है, फिर तहज्जुद की नमाज़ अदा करके सहरी बनानी हम्म। होती है फैमिली के हम्म। लिए, और उसके बाद किचन का थोड़ा बहुत करते हैं, कुरान पाक जी। पढ़ा, नमाज़ पढ़ी, और इतने में हमारा सुबह हो जाती है, और बच्चों को रेडी किया, उनको नाश्ता हम्म। वगैरह करवा के भेजती हूँ। उसके बाद अब जो मेरी रूटीन है वो यही है कि मैं कोशिश करती हूँ 1 घंटा क्लीनिंग को देती हूँ घर को, और हम्म। उसके बाद घंटा डेढ़ होता है जो मैं अपना ये वर्क करती हूँ बिज़नेस का। हम्म। और फिर मेरे बेटे उनको लाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि माशाल्लाह से वो भी रोज़ा रख रहे हैं बड़ा बेटे, और उनको रेस्ट के लिए घर लाना होता है मस्ट, वैसे तो हम्म। खाना वो स्कूल में खाते हैं, तो उनको हम्म। ला के, उससे 2 छोटे हैं उनको खाना खिलाना होता है, फिर नमाज़ अदा की, फिर उनको छोड़ के आती हूँ वापस, तो फिर 45 मिनट का मैक्सिमम टाइम होता है जिसमें मैं थोड़ा बहुत इफ्तारी का काम करती हूँ, नमाज़ अदा करती हूँ असर की, और फिर उनको जो है ना अपनी बेटी को लेने चली जाती हूँ। वहाँ पे उसको हम्म। लाके, और वो फिर आधा घंटा सेंटर में होता है, फिर मैं बेटों के स्कूल के पास ही स्टे करती हूँ, क्योंकि घर में आना-जाना वो भी टाइम वेस्ट होता है। टाइम हो जाने लगा। हम्म। हाँ, तो उधर फिर बेटों को लेके घर आए, उनकी कुरान पाक की क्लास होती है, वो लेते हैं, और मैं आके कुकिंग वगैरह करती हूँ, इफ्तारी हम्म। बनाई, फिर नमाज़ अदा की, और उसके बाद किचन का थोड़ा बहुत काम किया, फिर इशा का टाइम हो जाता है, क्योंकि हम्म। हमारा दिन में 5 दफ़ा तो माशाल्लाह से 5 नमाज़ों का भी होता है, और इशा की नमाज़ भी हमारी रमज़ान में लंबी होती है, तकरीबन मैक्सिमम पौना घंटा, घंटे की नमाज़ होती है, हम्म। और कुरान पाक पढ़ना होता है मस्ट शाम को, क्योंकि, और उसके बाद फिर वैसे ही दिन का पूरे का शेड्यूल इस तरह से बिज़ी होते हैं, बच्चों के लिए सुबह के लिए हमने कपड़े प्रिपेयर करके रात को रखने होते हैं, या कभी सुबह किए या कभी शाम को, डिपेंड करता है। और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 घंटा निकालूँ, डेढ़ शाम को अपने इस काम को देती हूँ, और हम्म। फिर बस इस तरह से मैनेज हो रहा है आजकल तो। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤੇ फुल ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਜੂਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ बहुत ਬਿਖਰੇ ज़रूरी है। ਪਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ कुछ नहीं है, बस ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ इसमें 'ਚ चली ਜਾਂਦੀ। इंसान, हम्म। मुझे लगता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होता ही है, लेकिन हम्म। मेंटली तौर पे बहुत स्टेबल होता है, जो हम कोई ना कोई स्ट्रेस ले के एवं स्क्रोलिंग करते रहते हैं ना, उन चीज़ों से बच जाता है।
फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होती है, आपका टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाता है। अब मुझे पता होता है, मुझे ये क्यूरियोसिटी होती है, मैंने इबादत भी करनी है, मैंने अपने घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, उनको भी टाइम देना है, मैंने अपने काम को भी टाइम देना है। और अगर ऐसे ही मैं फजूल में सारा कुछ ऐसे ही रख के तो स्क्रोलिंग करूं या कुछ भी टाइम वेस्ट करूं, तो मैं मैनेज नहीं कर सकती। ये सबसे इसकी खूबसूरती इस बिजनेस की है कि ये आपको मैनेजमेंट सिखाती है। और मुझे एग्जैक्टली। लगता है कि आज के बिजी दौर में और इतनी आगे जाने वाले दौर में इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको मैनेजमेंट आनी चाहिए। नहीं नहीं, और बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी सारा स्केड्यूल सुन के तो मैं तो आप हैरान हुई पई हाँ। इसको ज्वाइन करने के बाद खुद में इम्प्रूवमेंट सबसे पहले इंसान देखता है। हम्म। पैसे तो उसको बहुत पीछे आके मिलते हैं, पहले तो अपनी इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ऐसा नहीं है, ਪਹਿਲਾਂ ऐसा ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਖੁਦ है। ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੈਟ ਰਿਚ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? बिल्कुल भी नहीं, ये माइंडसेट तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हम्म। ये तो हमारे एज अ मुस्लिम भी मैं कहूंगी कि हलाल वे में भी नहीं आता। अगर हम ये हम्म। थिंकिंग रखें कि हम इधर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही हमें डबल होके ट्रिपल होके हमें मिल जाए, ऐसा तो होता हम्म। नहीं है। मैंने हम्म। जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे याद है कि आपसे तो बात हुई थी, लेकिन हम्म। मैंने स्पेशली इसकी बहुत इन्वेस्टिगेशन की थी कि मुझे हलाल ही चाहिए। ये हम्म। बात मैं ज़रूर इसमें ऐड करना चाहूँगी। और जी। कोई भी काम है, आप मैंने पहले बोला कि ये जॉब नहीं, ये बिज़नेस है। जॉब करते हो आप, मंथ के बाद आप जॉब करते हो, उस पे मेहनत करते हो उस पे भी, इसीलिए हम्म। आपको मिलते हैं। और जो बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस आपको रातों-रात अमीर नहीं करता, उसमें आपको अपना इनपुट देना पड़ता है। हाँ, हमारे सिस्टम की ये बहुत अच्छी बात है कि बैकवर्ड में हमारा सारा ऑटोमेशन पे काम है, वो हो रहा होता है। लेकिन अगर आप अपना इनपुट नहीं दोगे, आपको कम से कम 10% तो देना पड़ेगा। अब आपको मैंने शेड्यूल में बताया है कि मैं सुबह के टाइम टाइम देती हूँ, रात को टाइम देती हूँ, मैं स्टिल टाइम नहीं दे सकती। हम्म। ये फ्लेक्सिबिलिटी सबसे इस बिजनेस की अच्छी है, क्योंकि एज अ मदर हाउस वाइफ मैं अगर बोलूँ कि मैं, जैसे मैंने बोला कि मुझ में विल थी कि मैं जाऊं, मैं करूं, मैं पहले जॉब करती रही हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को छोड़ के 6 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट लगाने जाऊं तो फिर तो मैनेज नहीं हो सकता। हम्म। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी काम है आप अपना उसमें इनपुट देंगे तो आप उसको हलाल वे में उसको ले भी सकेंगे। अगर ये नहीं है कि आप उसमें अपना इनपुट दें ही ना और आप बोलें कि सब कुछ हमें फ्री में मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। जी, बिल्कुल। फ्री में तो आप कोई मशवरा भी नहीं देता हमें कि बोले हम्म। कि आज के दौर में कोई मशवरा भी दे दे, उसके लिए भी मुझे लगता है पेमेंट ही चाहिए होती है। तो हम्म। बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट है। कोई भी आप वैसे भी अगर कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़ों का काम करते हैं, उसके लिए कोई प्लेस देखते हैं, उसमें मशीनरी इनपुट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हम्म। यस, ये बिज़नेस भी ऐसा ही है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बल्कि अपनी हम्म। मेहनत भी करनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी से आपको सारा वर्क करना पड़ता है, तो फिर इससे आपको मिलता है। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਰੇਨੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਲਵਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। नहीं, ਸੋ मैं ਮੈਂ बहुत ਲਾਸਟ खुश ਵਿੱਚ हूँ सिर्फ आपने एक मुझे जी जी बुलाया है। मुझे या इस चीज़ की बहुत ते ज़्यादा खुशी जी है जी। कि जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, यहाँ बात कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ से। ਫਰਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बिल्कुल। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ओके। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸਲੀ ਗੱਲਬਾਤ कर पा रहे हो? बिल्कुल। सबसे पहली तो वही बात मैं आपको बताऊँगी कि मैंने खुद को सपोर्ट किया है। कोई हम्म। भी इंसान है, उसको सबसे पहले खुद को ही सपोर्ट करना पड़ता है, खुद को ही पुश करना पड़ता है कि नहीं कर सकते हो। अगर मैं पहले की अपनी बात करूँ तो वो डरी-डरी पीछे रहने वाली, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मुझसे नहीं होगा। तो हम्म। आज मैं वो हूँ कि मैं कहती हूँ मुझे कोई भी टास्क मिलता है ना, तो मैं ये नहीं देखती कि मैं कर सकूँगी या नहीं, या मैं नहीं करूँगी, मैं कहती हूँ मैं करूँगी। हम्म। आज मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है।
और मेरे हस्बैंड की हम्म। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उन्होंने मुझ पे बिलीव किया, उनको भी डाउट्स थे, बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने मुझ पे बिलीव किया है, तो आज मैं हम्म। यहाँ हूँ। माँ-बाप की दुआएँ हैं, जो मुझे आज इधर लेकर आई हैं। हम्म। और यही सपोर्ट है मेरी सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी उसके बाद आपकी है, जिन्होंने हम्म। मुझे बहुत कुछ सिखाया है और बहुत सीख रही हूँ। इंशाल्लाह जिस सीट पे आज आप हैं, मैं इंशाल्लाह एक वक़्त आएगा, हम फिर बात करेंगे इसी सीट पे होके इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਠਾ ਲਓ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਤ ਲਓ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਆ, ਜੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 0% ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਊਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦੋ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਰੱਖਦੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ सही ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਸਕਿੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੱਥੀਂ ਸਕਿੱਲ सही ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਆਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਯੈਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਟਿਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਰੀਅਲ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਰਹਾ बिल्कुल ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫਰਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ऐसे ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਰਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਫਰਹਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਕੇਜੂਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹਾਨੇ ਔਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ हाँ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਫਰਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਫਰਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਂਟੋਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਹਾ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ ਔਰ ਮਿਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਯੈਸ ਸੋ बिल्कुल। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਰਹਾ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको आज भी डर है और अपने आप पे सेल्फ डाउट है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तो अल्लाह ने हर इंसान को एबिलिटी ज़रूर दी है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को हम्म। पहचानें। आप अगर अपने आप को पहचानेंगे तो एक दिन इंशाल्लाह निखर के ज़रूर सामने आएँगे। हम्म। और बस खुद से प्यार करें, क्योंकि खुद खुद की पहचान होगी तो आप कुछ कर सकेंगे। बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और आपका थैंक यू सो मच, आपने मुझे हम्म। इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਰਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖੂਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ, ਯੈਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਸੋ थैंक यू सो मच फरा। और मिलते हैं जल्दी ते देखिए, करते हैं गूगल मैं बात। कोई भी इंसान सीखा-सिखाया इस दुनिया में नहीं आता। आज जी। अगर एक वुमन इतनी ब्रेव है, तो वो इसी ब्रेवनेस के साथ पैदा नहीं हुई थी, बल्कि हम्म। उसको दुनिया के हालात, उसको दुनिया की ठोकरें, यही जी। चीज़ें उसको इतना ब्रेव बनाती हैं कि वो एक दिन सामने आती है। और हम्म। बस मेरा यही पैगाम है कि सबसे ज़्यादा तो पहले खुद को पहचानें, और हम्म। इंशाल्लाह। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ और थैंक ਹੌਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚ ਹੌਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਫਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਰਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਲਦੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ज़रूर, ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू जी। ਥੈਂਕ ਯੂ। हाफ़िज़।